book of original entry are the books where transactions we first record. The books are 7. They have their purposes: sales journal for credit sales of goods, purchase journal for credit purchase of goods, for sales return journal for return inwards from customers, purchase return journal for return to suppliers, cash book for all cash and bank payments, for general journal, other transactions, unusual transactions, petty cash book for small payments by cash. Now, before moving towards the detail of the books, we have to look at the source documents. What are they? The source documents. Source documents are basically the proof of transactions. The proof of transactions. Right? Whatever transactions are going to be entered in the books, they must be supported with a proper authentic document. For example, we are going to record electricity expense. You must have a proof that is electricity bill. Agreed? If you are buying something and giving the payment against it, you must ask for the slip. You must ask for the invoice. You must ask for the receipt. Agreed? जो भी आप transactions कर रहे हो, उसका documentary evidence आपके पास होना चाहिए. Document का proof आपके पास होना चाहिए. So, the most important source documents are: number 1, invoice; number 2, credit note; number 3, petty cash voucher; checks, check stubs, not check receipt, it's checks, check stubs, and other expense records. You may say vouchers. Let me talk one by one. Invoice. When a business sells goods on credit, it sends a document to a buying firm showing the detail of the goods sold and their prices. So whenever goods are sold on credit, invoice is issued. Invoice is issued by the seller. Invoice issued by seller when they are selling goods on credit. But receipt are issued when cash is received. When cash is received, यानी अगर आप कैश पे सेल कर रहे हो तो आप रिसीट इशू करोगे. अगर आप क्रेडिट पे माल बेच रहे हो तो आप इनवॉइस इशू करोगे. फॉर एग्जाम्पल, Mr. A, Mr. B. A is a seller. B is a buyer. A is selling goods to B. A is selling goods to B. Mr. A, if selling goods on credit, then A will be issuing a document called invoice. When A is selling goods on credit to B, he will be issuing a document called invoice.
एग्रीड। अगर यही मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं फॉर कैश, so A will be issuing a document called receipt. अगर A क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर माल बेच रहा है, तो A जो डॉक्यूमेंट बना के देगा, प्रूफ बना के देगा, उसे कहते हैं इनवॉइस। Similarly, if A is selling goods for cash, यानी गुड्स बेच रहा है ऑन द स्पॉट, कैश रिसीव कर रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट इशू होगा उसे रिसीट कहते हैं। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें कवर होती हैं, खास तौर से बेसिक्स बहुत इंप्रूव होती हैं, जनरल नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। एग्रीड। तो ये सारी बातें आपको इंशाअल्लाह याद करनी होंगी, ज़हन नशीन करनी होंगी। मैं पिक्चर्स के जरिए भी बना बना के आपको समझा रहा हूं। क्रेडिट नोट, इट इज सिंपली द ऑपोजिट ऑफ इनवॉइस। सर आपने कुछ बॉडमास में भी भिजवाया है? ऑफ इनवॉइस साथ ही बनवाता हूं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना। Yes, so the third document, credit note, is a reversal of credit note. Basically, it cancel the invoice. It cancel the invoice fully or partly. How sir? सुनिए गौर से, हमने माल सेल किया था, फॉर एग्जाम्पल अगेन ए ने बी को माल सेल किया था और क्रेडिट पर सेल किया था, तो डॉक्यूमेंट दिया था इसको इनवॉइस, लेकिन कुछ माल खराब निकला या आउट ऑफ ऑर्डर निकला या आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन निकला और बी ने वो गुड्स रिटर्न कर दिए। आई रिपीट माय बेटा, ए ने माल बेचा बी को, अगर उधार पे माल बेचा ए क्या देगा? इनवॉइस। एग्रीड। फिर अगर वो माल खराब निकला, बी ने वो उसमें से कुछ माल या सारा माल वापस कर दिया, तो A will be issuing another document. A will be issuing another document called credit note. क्या कहते हैं इसको? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये कैंसिल कर देता है इनवॉइस को। मिसाल के तौर पर, आपने 1000 रुपए का माल बेचा था, आपने 1000 रुपए का इनवॉइस बना दिया, मतलब बिल। इनवॉइस मींस बिल। कोई चीज आपने खरीदी उधार पर, उसका बिल आ गया 1000, लेकिन उसके बाद आपने 200 रुपए का माल डिफेक्टिव होने की वजह से वापस कर दिया, तो अब आप 200 रुपए का क्रेडिट नोट बनाकर भेजोगे। पहले आपने सेल किया था 1000 का, तो 1000 रुपए का बिल आपने दिया था, मतलब 1000 रुपए पे करेगा बायर, 1000 रुपए आप रिसीव करोगे। लेकिन अगर उसने 200 का माल वापस कर दिया, तो आप 200 का क्रेडिट नोट दोगे। इसका क्या मतलब कि आप 200 रुपए मुझे नहीं देना,
इनवॉइस का मतलब है मुझे पैसे दो, क्रेडिट नोट का मतलब है मुझे पैसे नहीं देना। वेरी इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे सर, जब भी तो सर के लिए कहते हैं घोल के पिला दे। आपने माल बेचा 1000 का, 1000 का आपने बिल बना के दे दिया, भाई मुझे 1000 रुपए देना है, आपने मैंने माल दे दिया, लेकिन एक दो दिनों के बाद उसने माल देखा तो कुछ खराब निकला, उसने वापस कर दिया। तो अब जितने का माल वापस किया है उतने का आप क्रेडिट नोट बना के भेजोगे। हाँ यार मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरी गलती है, मैंने गलत माल दे दिया था, मेरे पास और माल नहीं है, अब आप मुझे 200 रुपए में का क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट है वो इशू कर रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट के जरिए अब आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे 200 की। तो 1000 माइनस 200, बायर जो है 800 रुपए पे करेगा। बायर जो है अब 800 रुपए पे करेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर के लेक्चर्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग होते हैं। That's a very knowledgeable topic. I really enjoy this, and I want you people to enjoy also. Agreed? The next document is debit note. This document is issued by buyer when returning goods. Do copy these. Let me explain it. आए डिटेल से दोबारा सीखते हैं। ए ने माल भेजा, बेचा बी को। अगर ए ने क्रेडिट पे माल बेचा तो ए क्या इशू करेगा? क्या इशू करेगा? क्या इशू करेगा? इनवॉइस। कुछ माल खराब निकला, बी ने वापस कर दिया। कुछ माल खराब निकला और बी ने वापस कर दिया। रिटर्न सम ऑफ द गुड्स। सो बी कौन सा डॉक्यूमेंट देगा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। डेबिट नोट। ए ने माल बेचा था, ए ने इनवॉइस दी थी, लेकिन जब माल खराब है ना तो उस खराब माल के लिए भी बायर मुझे डॉक्यूमेंट देगा, उसका नाम होता है डेबिट नोट। बदले में सेलर क्या देगा? क्रेडिट नोट। ये अपनी जगह वही पुराना वाला मैंने सिखाया है, ये पहले भी था, एग्रीड। सिर्फ मैंने इसके अंदर डेबिट नोट नई बात सिखाई है। ये मेरी चौथी पिक्चर है, गौर से देख लें। फोर्थ पिक्चर जो लास्ट पिक्चर है, लास्ट पिक्चर में मैंने सिर्फ डेबिट नोट सिखाया है। थर्ड पिक्चर में मैंने क्रेडिट नोट सिखाया है। यहां मैंने रिसीट सिखाई है, यहां मैंने इनवॉइस सिखाई है। ऐसा ही है क्लास? दोबारा समझ लें। थर्ड पिक्चर में आपको मैंने क्रेडिट नोट सिखाया था, 1000 का माल दिया था, 200 का वापस आ गया तो 200 का क्रेडिट नोट जाएगा। लास्ट पिक्चर में मैंने एक और बात सिखा दी कि हमारे जब हम इनवॉइस पे माल देंगे, बायर को अगर खराब लगा और बायर ने वापस कर दिया तो बायर डॉक्यूमेंट भी देगा उस माल के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने $1000 की शर्ट बेची थी, 200 की शर्ट्स वापस आई हैं तो 200 का एक डॉक्यूमेंट भी बनाकर देगा वो डेबिट नोट का, कि यार मैं ये माल वापस कर रहा हूं, इस तारीख को खरीदा था, इतने हिसाब से खरीदा था, ये इसमें डिफेक्ट है, मैं इसे आज वापस कर रहा हूं, काइंडली एक्सेप्ट करें।
ये डेबिट नोट के अंदर लिखा होता है डिटेल। इस अब क्रेडिट नोट देगा सेलर, हाँ यार मैंने तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखा, माल देखा, मेरी तरफ से गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, अब तुम मुझे इसकी पेमेंट नहीं करना। इनवॉइस का ऑपोजिट होता है क्रेडिट नोट। तो सर ने आपको 4 डॉक्यूमेंट समझाने की कोशिश की है, इनवॉइस, रिसीट्स, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। No further documents here. So sir is giving you more definitions of documents like check stubs. It is helpful to record payments by cash. चेक, सॉरी, चेक के जरिए जब पेमेंट होती है, मैं आपको चेक की शक्ल दिखाऊं कैसी होती है बेटा, आप सबने उम्मीद है देखा ही होगा, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। ये मैं चेक की शक्ल से बता रहा हूं आपको। इसके 2 हिस्से होते हैं एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। मैं चेक लिखता हूं, चेक में क्या क्या चीजें होती हैं, यहां होता है डेट, डिटेल और 2-3 चीजें, और फिर यहां पर होता है अमाउंट ऑफ चेक। यहां पे क्या क्या होता है, यहां होती है डेट, पे यानी पे किसको कर रहे हो ये लिखो, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वैल्यू, अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ पर सिग्नेचर। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी प्रिंटेड होता है, मतलब बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, वो सब प्रिंटेड होता है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, चेक समझ में आ गया, ये पूरा चेक है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक छोटा हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है। तो जो छोटा हिस्सा होता है इसे कहते हैं चेक स्टब्स। जब आप चेक लिखते हो तो यहां से इस चेक को फाड़ देते हो, ये आप पार्टी को पे कर देते हो, और ये छोटा वाला हिस्सा इसमें लगा रहता है। दिस इज हेल्पफुल कि ये चेक, यहाँ नंबर लिखा होगा चेक का, यहाँ भी नंबर लिखा होगा चेक का, तो ये चेक आपने किस डेट को, किस बंदे को, किस वजह से दिया, कितनी अमाउंट का दिया। एग्रीड। ये जिसको भी आप पे कर रहे हो चेक, उसकी डिटेल आप इस छोटे वाले पोर्शन में लिखते हो, टू कीप इट रिमेंबर कि ये चेक मैंने पे किसको किया है, ये चेक मैंने कहा इस्तेमाल किया है। तो इसी के जरिए हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको याद है कैश और चेक की ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, किसी को याद है, हो गया है तो जल्दी से बताइए। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पढ़ाई थी मैंने, कैश और चेक ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होती हैं, चेक और कैश ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होती हैं, चेक और कैश ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होती हैं। जी माय डियर, you have to keep remember all these things, you have to learn it as quickly as possible.
Vouchers are also maintained to keep the detail of transactions. अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल सैलरीज होती हैं, सैलरी वाउचर बना देते हैं उसका. ये हम खुद जनरेट करते हैं, कंपनी खुद बनाती है ये. इसी तरह अगर आपने फोटोकॉपी करानी है तो अक्सर छोटी जगहों पर फोटोकॉपी की कोई वो नहीं होता डॉक्यूमेंट, या आप परचून वाले से जाकर डोमेस्टिक आइटम्स खरीद रहे हो, क्लीनिंग मटेरियल खरीद रहे हो, तो उस वक्त भी आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा. हमारे यहाँ बस फेयर्स वगैरह के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट एज सच नहीं होता. या ऑटो वाला हमें किराया लेता तो है लेकिन हमें कोई स्लिप नहीं देता. तो जब वो पियोन वो काम करके आता है तो वो कंपनी में आकर बताता है अकाउंटेंट को या जूनियर अकाउंटेंट को या क्लर्क को, तो वो क्लर्क उसके लिए वाउचर बना देता है और उसे प्रूफ कर देता है, हाँ यार ये मैंने काम से भेजा था, इसमें इतना खर्चा हुआ, ताकि वो वाउचर ऑथेंटिक बन जाएगा. वो ऑफिस बॉय की बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन जिसने उसको साइन किया है, जिस सीनियर मैनेजर ने ऑथराइज किया है, उसकी बात पर वो उसे ट्रस्ट करेगा. राइट हो गया. तो ये बातें आपको अंडरस्टैंड करनी है, याद करनी है. मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा लेक्चर को लेकर. आज कोशिश है कि ये थ्योरी मैं खत्म कर दूं. So the next detail of this topic, books of original entries, detail of books of original entries, I already explained. This is very interesting. Types of ledgers. हमने इससे पहले एक लेजर बना था. लेजर का मतलब क्या होता है सर? टी अकाउंट्स. लेजर का मतलब क्या होता है सर? टी अकाउंट्स. लेजर भी एक तरह के नहीं होते हैं, कई तरह के होते हैं. टी अकाउंट्स लेजर्स एक तरह के नहीं, कई तरह के होते हैं. सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर. सर ने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, पहले आप छोटे थे, छोटी छोटी बातें करते थे, छोटे छोटे गेम खेलते थे, छोटी छोटी किताबें पढ़ते थे, बच्चों वाली हरकतें करते थे. अब आप थोड़े से बड़े हो रहे हो, सर आपको नई नई बातें सिखा रहे हैं. पहले हमने सिर्फ एक जर्नल सीखा था, उसका नाम था जनरल जर्नल. फिर आज सर ने बताया नहीं 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 नहीं, अब सर ने क्या बताया? एक जर्नल नहीं होता भाई, सेल्स जर्नल भी होता है, परचेज जर्नल भी होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल भी होता है, परचेज रिटर्न जर्नल भी होता है, कैश बुक भी होता है, जर्नल होता है, पेटी कैश बुक भी होता है. तो इतने सारे जर्नल होते हैं. फिर हम जब छोटे थे, छोटी हरकतें करते थे, छोटी किताबें पढ़ते थे, छोटे काम करते थे, तो हम जनरल लेजर बनाते थे. लेकिन सर ने कहा नहीं नहीं बेटा, बड़े हो जाओ थोड़ा सा. एक लेजर नहीं होता, 3 लेजर होते हैं. नंबर 1 सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर. सब मेरे साथ हैं? सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर. ऑल्टरनेट नेम्स भी होते हैं, याद रखने चाहिए. नॉमिनल लेजर, इसका ऑल्टरनेट नेम है नॉमिनल लेजर.
सर अब हमें क्या पता कि किसमें कौन से अकाउंट बनते हैं। लेजर का मतलब समझ आ गया सबको, अकाउंट की बात हो रही है, टी अकाउंट जो बनते थे उसकी बात हो रही है। एग्रीड। अब सेल्स लेजर में कौन से अकाउंट होते हैं? ओनली पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। जिन जिन लोगों को आपने उधार पर माल बेचा उन सब के अलग अलग बाय नेम टी अकाउंट बनेंगे सेल्स लेजर में। बाय नेम सबके टी अकाउंट अलग अलग बनेंगे, सबके अलग अलग टी अकाउंट बनेंगे इंडिविजुअल लेजर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में। सिमिलरली परचेज लेजर ओनली ट्रेड पेएबल्स इंडिविजुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिन जिन लोगों से मैंने उधार पे माल खरीदा है, पेप्सी वाले से खरीदा है, यूनिलेवर वाले से खरीदा है, जितने से भी खरीदा है, सबका अलग अलग टी अकाउंट बनेगा। नाम के साथ हर बंदे का, हर पार्टी का अलग अलग अकाउंट होगा। ये कस्टमर हैं जिन्होंने उधार पे खरीदा था, ये सप्लायर हैं जिनसे उधार पे खरीदा था, कस्टमर जिनको उधार पे बेचा था, सप्लायर जिनसे उधार पे खरीदा था। उनके अलग अलग अकाउंट बनाने जरूरी है ताकि हमें पता लगे मुझे किस किस को पेमेंट करनी है, कितनी कितनी करनी है। जनरल लेजर में ऑल अदर्स, बाकी दुनिया जहां के सारे अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल बोले आप, कैपिटल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, दुनिया जहां के सारे अकाउंट जनरल लेजर में बनेंगे। पहुंच गए? सब एक दफा कंफर्म कर दें मुझे। 3 तरह के लेजर होते हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। इस तरह अलग अलग लेजर्स की हेडिंग्स होती हैं। सेल्स लेजर, इसमें सिर्फ वो टी अकाउंट्स होंगे जो कस्टमर वाले हैं। इसी तरह परचेज लेजर अलग जगह पर अलग पेज पे बन रहा होगा, उसमें सारे वो अकाउंट आएंगे जिनसे मैंने खरीदा था माल उधार पे। जनरल लेजर एक अलग जगह मेंटेन हो रहा होगा जिसके अंदर दुनिया जहां के सारे अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीन अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सारे दुनिया जहां के अकाउंट जनरल लेजर में होंगे। बोले क्या बात है। सो इंशाल्लाह ताला याद रहेंगी मेरी बातें। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है दोबारा समअप कर लें। हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ी जो कि जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स। हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इनवॉइस वगैरह, रिसीट्स, क्रेडिट नोट। फिर हमने लेजर्स की टाइप्स पढ़ी हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जर्नल लेजर। राइट हो गया? थैंक यू वेरी मच।